Hello and welcome to this video जहां पे मैं डिस्कस करूंगा three questions which are kind of challenging questions. One is easy to give you a spoiler and two are moderate to difficult. तो एक बार उन questions को देख लेते हैं. We will look at the solutions and then there is a small surprise for you at the end. So stay tuned till the end. कुछ questions में shortcuts भी होंगे, so I am going to discuss those as well. And of course, do let me know in the comment section once you're done with the video if you like this particular format of videos. So let's start with the first question. एक बार ट्राई कर लेना अपने से, pause the video and then have a look at the solution that will follow. So now let's start looking at the solution. Now this is a very easy question. अब जिन्होंने भी थोड़ा सा एलिगेशन रूल किया होगा उनके लिए तो एक बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा. So this is the easy one. Let's get it out of the way. तो यहाँ पे you know that there is some quantity of water that needs to be mixed with 12 liters of 88% milk solution. अब मतलब क्या बना, यहाँ पे we are talking about percentage of milk solution and the resultant is also in terms of percentage of milk. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे this is the milk solution that you have, this is the water वाला part that you have. अब यहाँ पे 88% मिल्क सोल्यूशन है, so I just write 88% here. अब वाटर के अंदर तो 0% मिल्क होगा, so I will write it as 0%. अब ये दोनों को मिक्स करके मुझे क्या रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिल रहा है, 48% का मुझे रिजल्टेंट मिक्सचर मिल रहा है. I need to understand in what ratio should these two individual solutions be mixed. अब यहाँ पे 88 and 48 के बीच का डिफरेंस is 40, so this part will be 40. 48 और 0 के बीच का डिफरेंस is 48, so this part will be 48 now. तो इनको किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए, 48:40 के रेशियो में मिक्स करना चाहिए. एंड दिस इज बेसिकली समथिंग वी कॉल द एलिगेशन रूल. अब 48:40 को मुझे मिक्स करना है या ये रेशियो में मिक्स करना है, बट आई नो दैट 88% का जो सोल्यूशन है ना वो 12 लीटर्स है. तो अगर ये 48 होता तो ये 40 होना चाहिए था. तो अगर ये 12 है तो ये कितना होना चाहिए, वेरी इजी. 48 डिवाइडेड बाय 4 करने से 12 मिलता है, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 करने से अपने को मिलेगा 10, which is going to be the answer to this question. So 10 liters of water should be mixed with 12 liters of 88% milk solution. If someone wants to do it using equations, try it out एक बार and let me know in the comment section what your approach was using equations, so that I can see if there is some error that you are making or if the entire thing that you have done is perfectly fine or not. अब देखते हैं question number 2. Now this is a slightly challenging question, तो इसको एक बार देख लेना. This is the question and these are the options that you have here. So एक बार इसको try कर लो on your own and then have a look at the solution that is going to follow. And a spoiler alert, there is a small shortcut as well. तो पहले इसका लॉन्ग कट डिस्कस करते हैं. लेट्स ट्राई टू पहले विजुअलाइज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. अब यहाँ पे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 4:3 के रेशियो में है. इसका मतलब क्या बना, योर मार्क प्राइस इज 4 एंड योर कॉस्ट प्राइस इज 3. इसका मतलब मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है. दैट इज व्हाट आई नो. Now the discount percentage offered before it was sold and the profit/loss percentage. तो मुझे पता नहीं है कि प्रॉफिट बनाया है कि लॉस बनाया है. This is in the ratio of 3:4. Now जो सेलिंग प्राइस होगा उसके दो कंडीशंस होंगे. या तो मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ पे कहीं पे होगा which is less than the mark price but greater than the cost price, जिस केस के अंदर मैं बनाऊंगा एक प्रॉफिट. या फिर ऐसे भी हो सकता है that my mark price was somewhere here, the cost price was somewhere here and the selling price is less than the cost price, in which case I would have made a loss. तो ये दो ही केसेस पॉसिबल हैं. Now what we know here is the discount percentage offered, जो discount percentage दिया था before it was sold and the profit/loss percentage are in the ratio of 3:4. तो अब यहाँ पे discount percentage कैसे निकालते हैं and profit loss percentage कैसे निकालते हैं, that is the important part. तो पहला वाला लॉन्ग कट लेके चलते हैं. Let's look at it using variables and see what happens. अब यहाँ पे I can say that the mark price let it be 4x rupees, dollars, जो भी करना है, 4x units. Similarly, cost price जो है वो 3x हो जाएगा because mark price and cost price are in the ratio of 4:3. अब यहाँ पे let's say for example that the discount percentage, right? The discount percentage offered was 3y, let's say, and in terms of the profit/loss percentage जो भी बना था, let's say that is 4y%. अब यहाँ पे मुझे पता करना है कि क्या हो रहा है. Now one thing I have to understand is डिस्काउंट देने के बाद मुझे मिलता है सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट या लॉस अगर मैं कॉस्ट प्राइस में ऐड करूंगा तो मुझे फिर से मिलेगा सेलिंग प्राइस. सो दोनों ही केसेस में सेलिंग प्राइस इज द कांस्टेंट थिंग दैट वी आर गेटिंग. अब पहले वाले केस में देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग. फर्स्ट केस में इफ यू लुक एट इट वी आर सेइंग दैट भाई मार्क प्राइस के ऊपर मैंने 3y% का डिस्काउंट दे दिया है. तो क्या मतलब बना इसका, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस. द सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी 4x into 1 - 3y/100. ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस. अब मैं बोल रहा हूं कि भाई कॉस्ट प्राइस के ऊपर मैं 4y का या तो प्रॉफिट या तो लॉस बना रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या है. So let's write this as well in the form of an equation. 3x into 1 plus, अगर प्रॉफिट बना है तो 1 plus into cost price will be the selling price.
और अगर लॉस बनाया है तो 1 माइनस 4y/100 करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। दोनों भी केस में सेलिंग प्राइस सेम है तो हम लोग इसको इक्वल कर रहे हैं। नाउ यू कैन कैंसल आउट एक्सेस फ्रॉम बोथ साइड्स। यू आर गोइंग टू गेट 4 माइनस 12y/100 इक्वल्स 3, या तो प्लस या तो माइनस 12y/100। नाउ इफ यू टेक दिस एज माइनस 12y/100 तो इशू हो जाएगा, बिकॉज दोनों माइनस 12y/100 कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट 4 इक्वल्स 3, विच इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकली। इसका मतलब ये है कि ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, विच बेसिकली टेल्स मी दैट दिस पर्सन हैज मेड अ प्रॉफिट। ये मुझे समझ में आ गया। नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस हियर। नाउ 12y विल गो टू द राइट हैंड साइड एंड दोनों 12y ऐड हो जाएंगे और मेरे को मिलेगा 24y/100। And what about the right hand side that we have? I am going to get 4, or left hand side rather, 4 minus 3 I'll get it as 1. अब 24y/100 is 1, बट अपने को क्या निकालना है? प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंटेज, जो अपने हिसाब से 4y था। तो 24y/100 अगर 1 है तो what can I say about 4y? I can say that it is 100/6. 100/6 is nothing but 16.66%. So we can say that this person has made a profit of 16.66%. नाउ इसको एक शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो लेट्स लुक एट द शॉर्टर वे ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन। अगेन ट्राई टू सी इफ यू आर एबल टू गेट दिस और नॉट। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा तो इट्स परफेक्टली ओके, डोंट वरी अबाउट। नाउ थिंक अबाउट दिस, वी हैव दिस इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो। नाउ लेट्स अज्यूम दैट वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट। लॉस करके भी कर सकते हो, प्रॉफिट से भी अज्यूम कर सकते हो। लेट्स अज्यूम वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट। अब यहां पे मुझे पता है दैट द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। दिस इज व्हाट आई नो। आई हैड आल्सो डिजाइन्ड द डायग्राम पहले, जहां पे अगर मैं सेलिंग प्राइस को बहुत पीछे ले लेता तो फिर उसमें परसेंटेज क्या चेंज होता और कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कितना चेंज होता। दैट वाज अनदर थिंग दैट वी हैड ड्रॉन। लेट्स फॉरगेट दैट डायग्राम फॉर द टाइम बीइंग एंड लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस 3:4। अब यहां पे डिस्काउंट परसेंटेज, लेट्स से दैट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड वाज डी। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड वाज डी ऑन मार्क प्राइस, तो ये बन जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मुझे नहीं पता, तो लेट्स से मैं इसको एक्स ले लेता हूं। एक्स का या तो प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ है, वो मैं कर रहा हूं सीपी के ऊपर। नाउ दिस रेशियो आई नो इज 3:4 अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई आल्सो नो दैट एमपी बाय सीपी इज 4:3। ये टर्म्स को थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। सो डी बाय एक्स इंटू सीपी बाय एमपी, अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, आई एम गोइंग टू गेट दिस एज 3/4। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी बाय एमपी? सीपी बाय एमपी इज 3/4 अगेन। तो सीपी बाय एमपी अगर 3/4 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट एज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नाउ कम टू दिस डायग्राम दैट वी हैड ड्रॉन। ये सीपी था और ये एमपी था। मैं बोल रहा हूं जितना मैंने डिस्काउंट दिया है उतना ही मैंने प्रॉफिट या लॉस किया है, तो मैं लॉस तो नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैंने यहां पे जाके लॉस किया हुआ है, एसपी यहां पे रखे, देन द डिस्काउंट इज दिस मच, राइट, बट दी लॉस इज ओनली दिस मच, तो इक्वल तो नहीं हो रहा। ये तभी हो सकता है व्हेन दी सेलिंग प्राइस इज एग्जैक्टली बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस। तो यहां पे मुझे पता है दैट कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो 4:3 है। सो मार्क प्राइस अगर यहां पे 4 है, देन द कॉस्ट प्राइस बिकम्स 3, इन विच केस द सेलिंग प्राइस बिकम्स 3.5। सो यहां पे मुझे बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है बाय यूजिंग दिस वन फ्रैक्शन दैट आई हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 0.5 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3। सो कितना प्रॉफिट परसेंट बन गया? 1/6 और 16.66%. So even without using two variables, you can still find it. जो रेशियो देंगे उससे पता चलेगा that the selling price is exactly in between the cost price and the mark price. And जैसे वो पता चल जाता है, you will get your profit to be 16.66%. Let's look at the third question. अब ये क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेना, try it out on your own. This is from time, speed and distance. So एक बार try कर लेना and then have a look at the solution that will follow. So people who are confused with this question, जो समझ में ही नहीं आ रहा, एक बार सोच लेना कि हो क्या रहा है. So there are two concepts that exist. One is circular motion when two people are traveling in opposite directions, and another concept is circular motion जहां पे both the people are traveling in the same direction. Now, how much time later will someone meet or two people meet if they are traveling in the same direction? तो यहाँ पे you have to understand that the faster person will have to gain 360 degrees over the slower person. अब यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल हैंड्स ऑफ अ क्लॉक का जो स्पीड है ना, उनको अपन पकड़ लेते हैं एक्स एंड वाई, एंड लेट्स से एक्स इज द फास्टर हैंड, एक्स ग्रेटर देन वाई, ये मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, द फास्टर हैंड हैज टू कवर 360 डिग्रीज मोर देन द स्लोअर हैंड, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगा वो एक्स माइनस वाई होगा। 360 डिग्री का गेन चाहिए एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ एक्स माइनस वाई, सो दिस इज द फ्रैक्शन दैट वी गेट। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं
तो उनके स्पीड्स ऐड हो जाएंगे बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वर्किंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो यहाँ पे हो जाएगा 360 अपॉन एक्स प्लस वाई। नाउ वी नो दैट दे वुड मीट ट्वाइस एज फ्रीक्वेंटली, मतलब ट्वाइस एज फास्ट इफ दे रन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो लोग ज्यादा जल्दी मिलेंगे। दिस बेसिकली मीन्स दैट इफ दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन दे विल टेक मोर टाइम। सो वी कैन से दैट ये होगा इक्वेशन। This is basically the time taken for the two hands to meet if they are traveling in the same direction, which will be twice of the time taken by the two hands to meet if they are traveling in opposite directions. अब ये करके अपने को 360 डिग्रीज तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। We are going to get 2x minus 2y equals x plus y, और we are going to get x equals 3 times y। तो ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहां पे बोला है कि x इक्वल्स 3 टाइम्स y, इसका मतलब x जो है वो मेरा फास्टर हैंड है जैसे मैंने पहले अज्यूम किया था, और y जो है वो मेरा स्लोअर हैंड है। Now what do we know here? How many times would the faster hand meet the slower hand in the time that the slower hand completes 20 rotations given that the hands run in opposite directions? अब ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। अब अगर मैं इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, व्हाट डज दिस मीन? जब स्लोअर वाला हैंड इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर हियर, व्हेन द स्लोअर हैंड कवर्स दिस मच ऑफ डिस्टेंस, द फास्टर हैंड वुड हैव कवर्ड दिस मच ऑफ डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस फास्टर हैंड ने कवर किया है। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? वी अंडरस्टैंड दैट जब स्लोअर हैंड 1/4 ट्रेवल कर रहा है, फास्टर हैंड ने 3/4 किया, स्लोअर हैंड 1/4 करेगा, फास्टर हैंड और 3/4 करेगा। सो आई नो दैट एक राउंड जब कंप्लीट करेगा स्लोअर हैंड, दैट वुड मीन दैट दे वुड हैव मेट 4 टाइम्स। सो दे वुड हैव मेट 4 टाइम्स जब स्लोअर हैंड एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है। अगर स्लोअर हैंड 20 रोटेशंस कंप्लीट करता है, देन द हैंड्स वुड हैव मेट 80 टाइम्स, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, that 80 times they would have met, because for every 1/4 round that the slower hand covers, the faster hand would have met the slower hand once. तो यहाँ पे एक राउंड करेंगे 4 बार मिलेंगे, 20 राउंड्स करेगा स्लोअर हैंड, 80 times they will meet. Now if you have had a problem understanding these concepts, और concepts में issues हैं, तो यहाँ पे we have CAT 25 power prep courses that we have launched. Arithmetic का course completely live है with all the videos that are there. These are all recorded videos that you can go through, and of course once you make a purchase you will also be added to a telegram group, तो तुमको वहां पे पूरे details मिल जाएंगे। So do join that telegram group in case you have any doubts or something that you need us to cover. The entire quant program is also available in the form of bundle for 5,000 rupees. This is a limited time offer that we are running. This is a pre-book offer basically if you look at it. तो सारे के सारे topics, concepts you can understand and see what exactly are uploaded, what is the date of release and so on and so forth. सारे details are there in the description box below. So do go through the entire structure that we have, and in case you are interested, do sign up for the courses. कुछ भी अगर doubts है, let us know in the comment section, and if you like the series, do let us know by supporting us, so that we know that this is something that you are genuinely interested in if you are preparing for CAT 2025.